વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર. સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. My dear friends, in which we are going to see today prokaryotic cell. The name itself is now very easy to understand. Primitive nucleus, karyon means nucleus, containing cell. Generally, we will study about bacteria in this group. So bacteria may be different in shape, in size, right? So if we talk about its shape, number one, if the shape is rod shape, इसके जैसा अगर कोई बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, उसको बोलेंगे बैसिलस. अगर स्फेरिकल है तो उसको बोलेंगे कोकस. दो याद रखना, एक रोड शेप है, एक स्फेरिकल है. एक को बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया और कोकस बैक्टीरिया, राइट. टू मोर, अगर वो कॉमा शेप होते हैं, कॉमा, अपने गुजराती में जो 7 होता है ना, 7, कॉमा शेप, ऐसे विब्रियो बोलते हैं. और अगर स्पाइरल शेप तो स्पाइरिलियम. So these four are on the basis of the variety of the difference in its shape. Bacillus rod shape, coccus spherical, vibrio comma shape, spiral spirilium. Okay. So what about the classification of bacteria? It may be on the basis of so many different things. In the last lecture we could see about this. We can classify ourselves on the basis of so many different things. For example, number one, on the basis of bachelor degree, on the basis of where we are living, right? अगर विलेज में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं, so many things. On the basis of the color of our hair, black color वाला, white color वाला. On the basis of our height, 5 feet से कम और उससे ज्यादा, या फिर उससे कम या फिर उससे ज्यादा. So many bases. So in case of the prokaryotic cells, we will be studying today bacterium. We all know very well that this bacteria causes generally diseases, so they are not good for us. But some of the varieties of the bacteria must be there in our intestine. They are living as symbionts. उसकी वजह से अपने को फायदा होता है और अपनी वजह से उनको फायदा होता है. So this kind of the relationship is known as symbiotic relationships. So remember one thing, my dear friend, that all the bacteria which are there in either our body or outside the body, they are always harmful. It's not like that. Some of the bacteria are useful for human. For example, Escherichia coli, which are living inside our gut. Okay, so they are very much needed for our survival. अगर वो नहीं होगा तो अपना जीना मुश्किल हो जाएगा. But majority of the bacteria are living in its host cell. They depends on the host to get energy. So we can say that majority of them are parasites in nature, right?
Today we are going to study the structure of one bacterium. A typical bacterium means a typical prokaryotic cell. उसमें क्या होता है? तो जो स्टडी है वो आज से एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नीट में उसमें से आने वाला है. ये जो आज का अपना टॉपिक है उसमें से आने वाला है. सो लेट वी ड्रॉ, राइट? सेल मेम्ब्रेन. I am drawing cell membrane and I have selected one bacterium. Ready? I have drawn the outermost periphery, which is cell membrane. Composition of this cell membrane is as same as the cell membrane of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिपिड और प्रोटीन रहते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है. तो वो दोनों में सिमिलर है. सो आई विल बी कंपेयरिंग all the parts which are located in this bacterium with the eukaryotic cell, and in the next lecture we are going to start eukaryotic cell. Okay, so this is the cell membrane. Outer to it remains cell wall, so that I will draw with the help of the blue color. Now this cell wall, what might be the function of cell wall? It gives shape to bacterium, वो उसको शेप देता है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग, उसको कोलैप्स नहीं होने देता है, उसको बर्स्ट नहीं होने देता है, वो उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है. ये सेल वॉल है. सेल मेम्ब्रेन, आउटर साइड सेल वॉल, उसके बाहर होता है, उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. दैट आई विल ड्रॉ विथ रेड कलर, ग्लाइकोकैलिक्स. In the different bacteria, the composition is different, maybe glycoprotein, glycolipid. This layer is glycocalyx. In some of the bacteria, this layer is very smooth, then it is called slime layer. Whereas in case of the another bacteria, it may be somehow thick, harder, tough, then it is called capsule. तो अच्छी तरीके से याद रखना, ये अगर लूज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे. ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम एंड कैप्सूल. अगर लूज नहीं है, अगर टफ है, थिक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे. So some of the bacteria have slime layer, some of the bacteria have capsule, मगर collectively हम उनको क्या बोलते हैं? Glycocalyx. Now all these three layer constitute one layer that surround this bacterium, right? और हर एक का अपना अपना एक रोल हो गया है. अभी ये सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है वो भी आने वाला है, मगर अपन लोग नाम याद रखेंगे. मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, द फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज सेल वॉल. उसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आई विल नॉट राइट इट. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, ये तीनों के तीनों हो गए. वो तीनों ये बैक्टीरिया में एक लेयर बनाते हैं साथ में. differences in this layer, on the basis of the differences of this layer and the staining ability, ये जो दो चीज मैंने आपके सामने रखी उसके बेस से भी ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है. अपने को लेना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग. आई विल राइट हियर. ग्राम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. उन्होंने एक स्टेन बनाया, एक लिक्विड बनाया, एक कलर देने वाला घटक बनाया. द बैक्टीरिया दैट स्टेन्स विद द ग्राम स्टेन, उसको ग्राम स्टेनिंग से अगर कलर लग गया, वो उसको रिसीव करने लगा, उसको कलर लग गया. ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और जिसका स्टेनिंग नहीं हो रहा है ये ग्राम स्टेन से, उसको बोलते हैं नेगेटिव बैक्टीरिया.
In our very first lecture, I told you about the methylene blue. When we want to study a typical plant cell, we need to get methylene blue as a stain. And we are to take some of the cells from the peel of the onion and put it on the slide. Just put one drop of the methylene blue, which is this stain. Means it is not gram stain. Methylene blue is itself a one different stain. Okay, then put one drop of this stain. So this stain will give color to the nucleus as well as the outermost cell wall, so as we can clearly observe this cell under the microscope. तो ये स्टेन क्या चीज है? अगर कोई सेल, अगर कोई ऑर्गेनेल को आपको अगर कलर लगाना है, वो ये है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपके सामने अभी रखी, उसको बोलते हैं स्टेनिंग किया, मतलब उसको कलर लगाया, मगर साइंटिफिकली मैनर में, राइट? सो हियर इट्स ए ग्राम स्टेन. So the bacteria that stains with the help of the gram stain, they are called gram positive bacteria, and that do not stain with the gram stain, means there is no any color with the help of the gram stain, they are called gram negative bacteria. So bacteria may be gram positive, may be gram negative on the basis of shape. ये यहाँ पर मैंने रखा. Some of the bacteria are aerobes and some of the bacteria are anaerobes. So aerobes bacteria are such bacteria that utilize oxygen, and anaerobes, these bacteria do not use oxygen. तो एक में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एक में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस टू टर्म, एरोब एंड एनएरोब्स. You have studied this in your 10th standard. Aerobic respiration, anaerobic respiration. Respiration that occurs in the presence of oxygen and that occurs in the absence of oxygen, respectively known as aerobic respiration and anaerobic respiration. So बैक्टीरिया में भी ऐसे होता है. अपने को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना है. अगर मैंने ये ग्राम स्टेनिंग लिया, इसके ऊपर ड्रॉप रखा, इसमें कलर आ गया, कलर आ गया, मैंने माइक्रोस्कोप में देखा कलर है, सपोज वायोलेट कलर है, कलरेशन हो गया, तो स्टेन को ये बैक्टीरिया ने रिसीव किया, तो ये बैक्टीरिया कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. मैंने ये स्टेन लिया, एक ड्रॉप इसके ऊपर रखा, उसको कोई कलर नहीं आया, इसने ये रिसीव नहीं किया, ये बैक्टीरियम कहलाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अभी पॉजिटिव में भी एरोब्स और एनारोब्स, नेगेटिव में भी एरोब्स और एनारोब्स. ये एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया आपके लिए थोड़ा सा अलग है, ये अपनी बुक में नहीं दिया गया है. नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स इनर साइड, राइट? अभी इसके अंदर क्या है, तो ये अपने को मालूम है कि ये सब साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म को तो ऐसे ही टपका 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 कर देते हैं, डॉट 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 कर देते हैं. नाउ इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. दिस इज डीएनए, circular. It is located in a specific area which is called nucleoid. So ऐसे करके मैं यहाँ पर लिखूंगा nucleoid, and this is called bacterial genome or bacterial chromosome, which is nothing but DNA. और ये DNA ऐसे scattered नहीं हो जाए, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो रेड कलर से मैं राउंड कर रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो ये इसको होल्ड करता है, यहीं पर रहो, राइट? वन मोर सर्कुलर डीएनए, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, रिक्वायर्ड फॉर फिनोटाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज प्लाज्मिड. अभी ये साला फिनोटाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? ओके, एक एग्जांपल से आपको, जो एक हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन में आने वाला है 12th में. सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग दैट क्लासिकल एग्जांपल. दिस हेल्प्स टू मॉनिटर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया. कुछ समझ में नहीं आया? दिस हेल्प्स टू मॉनिटर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. समझा तो बहुत ही बढ़िया है. सपोज ये बैक्टीरिया है, उसको मैं ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ, ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियम है. ओके, सो मेनी बैक्टीरिया होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल.
ये बैक्टीरिया को सपोज आई वांट टू किल दिस बैक्टीरिया, आई हैव टू अप्लाई एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अभी ये डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं कोरोना में, हाँ, तो उनमें से मैंने कोई एक एंटीबायोटिक सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन सिलेक्ट की, उसकी ट्रीटमेंट इसको दी, ये बैक्टीरिया मर गया, खत्म हो गया। अभी एक दूसरा बैक्टीरियम लिया, उसके ऊपर एमोक्सिसिलिन डाला, ये नहीं मरा। So what we can say that this bacterium has got ability to fight against antibiotic. It has a one specific wonderful feature for the protection अपने लिए, हाँ। तो ये क्या होता है, ये जो अभी कैरेक्टरिस्टिक ये बैक्टीरियम में आया, उसके पीछे कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द प्लाज्मिड, दिस इज डीएनए। तो ये प्लाज्मिड है, उसको थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे रखता हूं प्लाज्मिड, ये डीएनए है, उसको ऐसा थोड़ा सा अभी बड़ा कर रहा हूं, ये डीएनए को बड़ा किया, ओके, दिस इज एक्चुअली डीएनए। Now a certain portion, certain part of the DNA is considered as gene, याद रखना, a specific portion of the DNA is called gene. Now what happens, this gene has got so many codes inside. What are these codes that you will come to know in the 12th standard? But the code are arranged in this gene and its expression is one feature which is resistant to antibiotic, which is resistant to antibiotic. Would mean that the bacteria which has this gene will not be killed by any antibiotic. So this gene is called antibiotic resistant gene. तो ये जीन का अपन लोग नाम रखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ओके, उसका नाम मैंने क्या रखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सो सपोज यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसको हम अभी ड्राइंग करेंगे ब्लू कलर से। सो दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। व्हेन दिस जीन एक्सप्रेस, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये बैक्टीरियम को एंटीबायोटिक से मरने नहीं देना है, मरने नहीं देना है, ये है। नाउ सपोज आई वांट दिस बैक्टीरियम टू सिक्रीट इंसुलिन, तो बच्चा बोलेगा साहब आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा अपने लिए, इंसुलिन को सिक्रीट करेगा, सिक्रीशन के लिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन उससे यहाँ पर बाहर आएगा सेल मेम्ब्रेन में होके। साहब ये बात कुछ जमी नहीं, बैक्टीरिया इंसुलिन कैसे सिक्रीट करे? अपन लोग इंसुलिन बनाते हैं और एक टाइप से हमारे ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में जब इंसुलिन बनता है तो अपने को डायबिटीज नहीं होता है। So the patient, those who are suffering from the diabetes, the patients whose body is not capable to synthesize insulin, they must be given insulin from outside. We are aware, insulin injection less. So in the biotechnology and genetic engineering, what happens? अच्छी तरीके से ध्यान रखना हो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है। If our body is synthesizing insulin, would mean that in our body there is a piece of the DNA which is called gene, जिसका एक्सप्रेशन इंसुलिन का सिंथेसिस करना, so it is called insulin gene. ये जीन का एक्सप्रेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, दैट इज व्हाई दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. So the portion of the DNA of our cell that synthesizes insulin and secrete it from the cell outside into the blood. Now this portion of the DNA is called insulin gene. So scientists separated this portion of the DNA which is insulin gene, and this portion of the DNA was introduced into this plasmid. Suppose यहाँ पर डाल दिया रेड कलर इंसुलिन जीन, ओके, तो मैं ये फिगर थोड़ी सी स्मॉल करके यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं और यहां पर रख रहा हूं रेड कलर का इंसुलिन जीन, उसको इन शॉर्ट वी विल राइट INGEN, ओके, इंसुलिन जीन. Now we are to monitor that whether this insulin gene is here attached or not, whether it is fixed or not.
or we have to monitor that whether this bacterium has transformed into one variety. One variety means the variety that contain insulin gene. तो ये मॉनिटर करने के लिए अभी हमने किसका यूज किया? ये प्लाज्मिड का यूज किया, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इंसुलिन जीन इनटू द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स. उसका इंस्ट्रूमेंट ये सब कैसे होता है, ये एक पूरा का पूरा लेसन है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये दो ब्रांच है, उसका अभी समय आने वाला है. ये जो वैक्सीन बनी है ना, वैक्सीन कोरोना की, ये कोरोना की वैक्सीन बनाने में जेनेटिक इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत सारा हुआ है. उसका जो साधन सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज हुआ है. वो सब बहुत ही बढ़िया चीज है. सो दिस हैज बिकम सक्सेसफुल नाउअडेज. नाउ आई विल ग्रो दिस बैक्टीरियम in the laboratory by giving its a food. So many bacteria I will find. And when this insulin gene is activated, this bacterium will start synthesizing insulin, and this bacteria will secrete insulin. I will collect this insulin. I will put into the vial in the injection, and I will give this injection to the patient suffering from the diabetes. This is how insulin molecules are formed. You are really surprised by knowing what I have taught you is that the secretion of insulin in a diabetic patient is not there. We did one wonderful thing. We gave our gene to the bacteria. We tell bacteria that you are to synthesize insulin for us, and we are going to utilize this. हमने हमारा जीन बैक्टीरिया को दे दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाया. ये इंसुलिन अपन लोग ने लिया और डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया. तो हुआ क्या कि पहले ये जो बैक्टीरियम था उसके अंदर जो प्लाज्मिड था, उसमें जो डीएनए नहीं था वो हमने अंदर डाला नया. तो ये बैक्टीरिया अभी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इंसुलिन सिक्रीट करने वाला बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मॉनिटर करने के लिए इसका यूज हमने नहीं किया. हमने किसका यूज किया? प्लाज्मिड का. वंडरफुल थिंग आई टॉट यू. ये याद रखना, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा साइंटिस्ट बनना है, अच्छा पढ़ना है, ये सब चाहिए. अपनी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी लाइन है, उसको सिर्फ मगिंग नहीं करना है. ऐसे 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 पढ़ के मगिंग कर ले और अपने को ओहो ये तो दिस थिंग आई नो. भाई उसका मतलब क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो क्यों लिखा है, ये अपने को समझना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर 330 प्लस लाना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करनी है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. अपन बाहर से देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा है, ये बैक्टीरिया इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है. जनरली फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक्सटर्नल हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, भाई अपने को ये हेयर है, नेल है, ये सब. ओके, तो अपन यहाँ पर एंटीबायोटिक रखते हैं, ये मर नहीं रहा, ये एक में से दो हो रहा है, हम उसको देख सकते हैं बाहर से. इंटरनल फीचर्स हम देख नहीं सकते, अंदर क्या अभी चल रहा है. बढ़िया चीज आपको, ये अभी प्लाज्मिड का सिर्फ नंबरिया हुआ है. हाँ, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज होती है, वो हम पढ़ेंगे. एरिया इन विच मेन जीनोम, मेन जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज लोकेटेड, न्यूक्लियोइड. वो एरिया को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर जीनोम, बैक्टीरिया का जीनोम बोलते हैं. अभी आगे जाते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है. इट इज टोटली एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, whereas in eukaryotic cell it is present. These bacterium divide faster. Prokaryote cells divide faster compared to the eukaryote cells. तो आमा बहुत વધારે सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, फटाफट हो रहा है, इसलिए उसका ग्रोथ ज्यादा. तो अपने को इन्फेक्शन लग जाए तो 2-3 दिन में
अपने को पता चल जाता है कि भाई कुछ इन्फेक्शन लग गया है, क्योंकि वो रैपिड सेल डिवीजन करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स. If we talk about ribosomes in the cytoplasm or in association with cell membrane, ribosome. Ribosomes help in protein synthesis. कैसे? अगले लेक्चर में देखेंगे. मतलब राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी एक ऐसा हेडिंग है, ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ. मगर राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो राइबोसोम का अभी यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane has inner folding, you can see. So it increases the total area. अगर इतना रखो तो उसका तो टोटल एरिया इतने होगा. अगर मैं उसको फोल्डिंग 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 घुमा घुमा के ऐसे कर दूं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम. Mesosome. This you are to remember. Mesosome. Folding of cell membrane towards inner side. I have drawn it in such a way that it is in contact with the bacterial genome. You can see here. This may be tubular in form, may be only membrane, then it is called lamellae. Lamellae. Right? और ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल. वेसिकल बोले तो ऐसे, इसको वेसिकल बोलते हैं. ट्यूब्यूल अपने को पता ही है, ये ट्यूब्यूल है. राइट. सो दिस इनफोल्डिंग्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल और ट्यूब्यूल और लेमेला. इसका बहुत सारा काम है. इसका रेप्लिकेशन करना, ये डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन मतलब ये डीएनए की जैसा दूसरा डीएनए. एंड व्हेन दिस बैक्टीरियम डिवाइड्स, बाइनरी फिशन, सो ईच बैक्टीरियम मस्ट रिसीव जेनेटिक मटेरियल. तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसमें भी ये हेल्प करता है. इसके ऊपर एंजाइम्स लोकेट हुए होते. डोंट थिंक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल. एंजाइम लोकेट हुए होते. रेस्पिरेशन की प्रोसेस के साथ वो अभी कंसर्न है. वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, दैट वी विल सी व्हेन वी विल बी स्टडिंग माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए चाहिए, तो जितना ज्यादा इनफोल्डिंग, उतना ज्यादा एरिया, उतना ज्यादा एंजाइम, उतना ज्यादा रेस्पिरेशन, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी. ऐसे याद रखना ये सब पॉइंट. You are aware about this term respiration. When glucose molecule is broken down in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. So the main goal of the respiration is to produce energy and store it into the ATP. वो एनर्जी के लिए है. राइट. I cannot speak production of energy because according to the law of thermodynamics, energy cannot be produced. मैं यहाँ पर क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, अपनी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ होगा, एनर्जी प्रोडक्शन. So whenever you find in the biology energy production, what you have to think? Release of energy. Release of energy. कहाँ पर होती है? बॉन्ड में. केमिस्ट्री में आ गया ना. हमारे पास ग्लूकोज है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उसके अंदर एनर्जी होती है. उसको ब्रेक करो, एनर्जी को बाहर निकालो. ये बाहर निकली हुई एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, मगर उसको पहले एटीपी के अंदर स्टोर होना पड़ता है. दैट विल सी. ये थोड़ा सा अभी इस लेक्चर में उसको नहीं लाना है. राइट. अभी ये अपना मेसोसोम हो गया. अभी ये जो मेम्ब्रेन है उसमें से मॉडिफिकेशन एक इसका हो रहा है. इसका थोड़ा सा मैंने काम आपके सामने रख दिया, फंक्शन मेसोसोम का. इसका रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया इंक्रीज, उसके ऊपर एंजाइम, उसका रोल रेस्पिरेशन में, बहुत सारा है. अभी देखना जो यहाँ से बाहर आता है वो हम पहले ड्राइंग करेंगे. फ्लैजेलम.
फ्लैजेलम में क्या होता है, एक बेजल बॉडी रहती है, बेजल बॉडी, बेजल बोले तो नीचे वाला पार्ट, और हुक रहता है एक, ऐसे, ये मैंने हुक का ड्राइंग किया है, बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट. फिलामेंट we'll draw with the help of the black color. So I have drawn one flagellum, maybe two flagella. So this bacterium is flagellated bacterium. This gives motility to bacteria. अगर कोई बैक्टीरियम मोटाइल है तो उसको फ्लैजेलम चाहिए, एक या दो भी हो सकते हैं. I have drawn only one. मगर each flagellum is made up of three parts: basal body, hook and filament. I will write basal body, hook, filament. Moreover, tubule, 10 तक भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं पिल्ली. पिल्लिन प्रोटीन की बनी हुई. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पिल्ली एट द टाइम ऑफ द कॉन्जुगेशन? दो बैक्टीरिया पास पास में आते हैं, दोनों की पिल्ली ऐसे लॉक हो जाती है. एज दिस इज tubular structure, genetic material exchange from one bacteria to another. So this helps in the sexual reproduction. When we are thinking about binary fission, means from one bacterium to two bacteria, it is actually asexual reproduction. But when you are thinking about the exchange of genetic material, it is sexual reproduction. It is sexual reproduction, right? So these two must come closer to each other, form one tube with the help of the pili and transfer its genetic material in the form of DNA. वो क्या होता है अपन लोग देख लेते हैं. पहले यहाँ पर ड्राइंग करता हूँ एक बैक्टीरियम का, उसके अंदर ये मेसोजोम लगा लो आप, ये मेसोजोम लगा लो, उसके साथ उसका जीनोमिक डीएनए लगा लो, इसका रेप्लिकेशन होगा तो सेकंड स्टेज ऐसा आएगा. इसका हम रेप्लिकेशन करवा लेते हैं, तो ये दो हो गया. ओके, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, ऐसा मेसोजोम दूसरे में भी बन गया और उसमें ऐसा हो गया. देख लेना अच्छी तरीके से. ये जीनोमिक डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया. अभी ये ऐसा बाइंड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा और दो बैक्टीरिया हो गया. रेडी? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक में से दो, हर एक में एक एक चला गया. दिस इज सिंपल बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल में एक में से दो हुआ, सेक्सुअल में अपन लोग देखेंगे दो आए, दो में से दो ही रहा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर दिस बैक्टीरिया इंक्रीज ही होना चाहिए, ऐसा मतलब होता है रिप्रोडक्शन का. देखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया है. अभी देखो ये दूसरा वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये एक बैक्टीरियम, ये दूसरा बैक्टीरियम, ये जीनोमिक डीएनए, ये प्लाज्मिड. प्लाज्मिड वी आर अवेयर, सर्कुलर डीएनए, स्मॉल, अलग एक पोता, एक अपने का एग्जिस्टेंस है.
and self-replicating. Self-replicating. This DNA does not need for the replication any help of this DNA. इसकी मदद नहीं चाहिए, वो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेटेड है, प्लाज्मिड. हाँ, और जो मेन जीनोमिक डीएनए उससे एक्स्ट्रा है, साइटोप्लाज्म में है. अभी क्या होता है, दिस टू विल कम क्लोजर. तो ये दोनों की पिल्ली पिल्ली उन्होंने ब्रिज बनाया, हम यहाँ पर रख देते हैं. ओके, ये जो पिल्ली है ये कॉन्जुगेशन हुआ. अभी क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ लेना. यहाँ पर जेनोमिक डीएनए है इसका, यहाँ पर इसका मेसोसोम वगैरह सब कुछ. इसके पास प्लाज्मिड नहीं है. ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, तो पहले ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो ऐसे डीएनए बनेगा, इसका डुप्लीकेट बनेगा. ये पासिंग थ्रू द पिली विल गो टू द अनदर बैक्टीरिया. तो ये गया इसके अंदर, अभी सेपरेट हो गया. तो जब सेपरेशन होगा तब ऐसा रहेगा ना. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. अभी क्या हुआ, इसके पास इसका प्लाज्मिड आ गया. तो ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बैक्टीरिया के पास नहीं था. ये भी बैक्टीरिया अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, नया फीचर आ गया. अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक में से दो हो रहा है, इसमें दो में से सिर्फ दो ही हो रहा है. मीन्स रिप्रोडक्शन डज नॉट मीन दैट टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी इंक्रीज. ऐसा नहीं है. तो भाई ये हुआ और ये दोनों में कौन सी प्रोसेस सिमिलर है, तो कि जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज कर रहा है, दे रहा है. जो नई पीढ़ी है, यहाँ पर नई पीढ़ी ये है, यहाँ पर नई जनरेशन ये है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है. तो पेरेंट में जो नया बन रहा है, यहाँ पर दो बना, यहाँ पर दो में से सिर्फ दो ही रहा है, वही रहा है. हाँ? मगर इसमें मेन प्रोसेस क्या हो रही है, जेनेटिक मटेरियल वो अपनी ऑफस्प्रिंग को दे रहे हैं. दिस इज द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्शन. याद रखना, ऑलवेज एक में से दो होना, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होना, यही सिर्फ रिप्रोडक्शन का ख्याल नहीं है. दिस इज द साइंटिफिक वे टू लर्न बायोलॉजी. ऐसे वो जो बुक में लिखा वो तो अपने को पढ़ना है, उसके पीछे क्या है ये भी जाना है. नीट में अच्छे मार्क लाना है तो यही एक रास्ता है. ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ. वन मोर स्ट्रक्चर विल ड्रॉ. फिम्बरी होती है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. ये तो पिल्ली से भी ज्यादा होती है. पिल्ली मैक्सिमम 10 तक होती है, 1 to 10 वी कैन से. ये इससे भी थोड़ा कम, 1 2 मे बी 3, नॉट मोर देन दैट. मगर ये तो 200 300 400, इसलिए इसको एक ड्राइंग करते, इसको 3 करते, इसको 3 से ज्यादा करते. फिम्ब्राई, उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई. अभी इसका रोल क्या है, जो कोई भी होस्ट बॉडी है, दिस बैक्टीरियम इज लिविंग इनसाइड एनी होस्ट टिश्यू, तो उसके ऊपर बैठने के लिए कुछ चाहिए ना. सो द पार्ट ऑन विच दिस विल लैंड, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम. उसके साथ स्टिक करने के लिए जो भी चाहिए स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, फिम्ब्री. रॉक, कोई भी आप रॉक ले लो, स्ट्रीम्स है वहां पर, वाटर स्ट्रीम्स. तो ये जो रॉक है उसके साथ स्टिक होने के लिए जो चाहिए वो क्या है, फिम्ब्राई. भाई 3 स्ट्रक्चर हमने देखे, फ्लैजेलम मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, पिली कॉन्जुगेशन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिम्ब्राई अटैचमेंट. अटैचमेंट में आपको एक रॉक याद रख लो, आप होस्ट टिश्यू याद रख लो. अगर ये बैक्टीरिया को किसी के टिश्यू सेल में जाना है तो वहां पर उसको लैंड करना पड़ेगा, वहां पर उसको स्टिक रहना पड़ेगा, इसके लिए ये है. ओके,
नाउ टुवर्ड्स इनर साइड ये जो सेल मेम्ब्रेन ब्लू ग्रीन algae और साइनोबैक्टीरिया में ऐसे वेसिकल बना के उसके अंदर क्लोरोफिल मतलब बैक्टीरियल क्लोरोफिल रहता है। तो अगर क्लोरोफिल आ गया तो ये बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। सो दिस बैक्टीरिया विल बी कंसीडर्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है क्रोमेटोफोर। सो नथिंग बट मेम्ब्रेन, उसका अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रहा है, एक वेसिकल के जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल बन गया। जब सनलाइट इसके ऊपर आएगी तो ये भी अपना फूड बनाएगा। सो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉप्स, जो मैंने आपको बोला था हेटेरोट्रॉप्स, एनर्जी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट्स। मगर ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये कुछ जो चीज मैंने यहां पर आपके सामने रखी, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इफ वी विल कंपेयर दिस विद द यूकैरियोटिक सेल, तो रिबोसोम्स तो होते हैं मगर उसका टाइप भी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। यहाँ पर एक इंक्लूजन बॉडीज आएगी, वो भी हम देखेंगे। इंक्लूजन बॉडीज में सपोज हम ले लेते हैं कि यहाँ पर स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स है, फूड जिसके अंदर स्टोर हुआ होता है, तो इंक्लूजन बॉडीज में ये सब आएगा, रिबोसोम्स और फूड ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर फूड स्टोर हुआ है। मगर उसके पास लेयर नहीं है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर रिबोसोम में थोड़ा सा डिटेल में जाना है। इतना ही है अपना मटेरियल और अपनी टेक्स्ट बुक में, मगर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके साथ इसकी बात करने के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज वाले लेक्चर में नहीं जाऊँगा, राइट। तो अभी आपको क्या याद रखना है, ये 3 लेयर पहले ड्रॉ किए थे, उसके बाद ये सब अंदर का ले लो और ये ले लो, ओके। कई बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होती है। एक थोड़ी सी बात, तो ऐसे ड्राइंग करके लिख देते हैं गैस वैक्यूल। इसके अंदर गैस रहेगा। अब जैसा नाम है वैसा उसका काम है कि कुछ अगर फ्लोटिंग करते हैं तो बहुत ही इजी रहेगा सरफेस के ऊपर रहने के लिए, तो ऐसा भी होता है। मगर सपोज आई वुड से दैट क्रोमेटोफोर, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इट डज नॉट मीन दैट क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बैक्टीरिया। ये एक टिपिकल है कि भाई कई बैक्टीरिया में होता है, मगर मेजोरिटी ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब मेजोरिटी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स नहीं है, मेजोरिटी है हेटेरोट्रॉप्स, राइट। तो अभी बात की हमने पहले उसका जो शेप है, अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ाई किसकी करनी है, बैक्टीरिया की। उसके अंदर माइकोप्लाज्मा आएगा, उसके अंदर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आएगी जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो शेप की बात की, उसके बाद उसका टाइप, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग, अगर इसको कलर लग जाता है ग्राम स्टेनिंग से तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं लगता है तो नेगेटिव बोलते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ यही ग्राम स्टेनिंग अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो लेयर है उसमें जो डिफरेंस है वो भी बेस बन सकता है। फ्लैजेलम के हिसाब से मोटाइल और नॉन मेटाइल भी हो सकता है, एरोब्स और एनएरोब्स भी हो सकता है। तो आप इसको कटका करके याद रखें कि पहले वाला पोर्शन में इसका थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन आ गया, दूसरे वाले पोर्शन में जो लेयर बन रहे वो आ गया। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और जो रेड कलर का है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स है। उसमें ये दो क्या है भाई, स्लाइम और कैप्सूल। लूज रहेगा ये कोई भी बैक्टीरिया में उसको स्लाइम बोलेंगे, थिक रहेगा, टफ रहेगा, मजबूत रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। है तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन
का इन्वेजिनेशन, कर्वेचर टूवर्ड्स इनर साइड, मेसोजोम हो सकता है वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल फॉर्म में और लेमेला मतलब मेम्ब्रेन फॉर्म में। ये सब टर्म आएगी, लिखी हुई होगी लेमेली। ये जब आया तब उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। अभी भाई ये कैसे समझे, अगर ये एक मेम्ब्रेन है, इसका इतना एरिया ले लेते हैं, अभी मैं यहां से ऐसा कर दूं तो जो इतना एरिया मैंने यहां से हटा लिया, मगर मुझको इतना सारा एरिया मिल गया। तो ये एरिया जब इंक्रीज हो गया, उसका मेन बेनिफिट क्या हुआ, उसके ऊपर एंजाइम भी रह सकते हैं, एंजाइम से रेस्पिरेशन हो सकता है ना। अपनी बुक में तो लिखा ही है सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन में भी, तो वो तो सिक्रीशन में भी उसका यूज तो होने वाला है, कुछ भी अंदर बना उसको बाहर आना है, पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन आएगा। ये सेल सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना, उसमें से उसको बाहर आएगा ना। सिक्रीट होना मतलब जो अंदर बना है वो बाहर आना, वो बाहर आना। तो ये एरिया टोटल इंक्रीज हो गया, ये याद रखना है। सरफेस एरिया इंक्रीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पर आना है। अभी देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा ड्राइंग करता हूँ, उसका टोटल एरिया 1 2 3 4 5 6 सरफेस का टोटल एरिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो मेरे पास सरफेस एरिया इसमें जितना था उससे थोड़ा सा ज्यादा मिला। एक मुझे ये सरफेस एक्स्ट्रा मिली, एक इसके पीछे वाली सरफेस एक्स्ट्रा मिली। मैं अभी इसका 2 में से 4 ब्लॉक बनाऊंगा तो मेरे पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका कोई फंक्शन एब्सॉर्प्शन का है तो एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। यहाँ पर कुछ रहना है तो उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज। अभी इसके अंदर 1 2 3 4 रह सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रह सकते हैं। 4 की जगह 18 रह सकते हैं। इतनी जगह अंदर की बाजू इनर फोल्डिंग हो गई तो वहां पर ज्यादा एंजाइम रह सकते हैं। एंजाइम तो पता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसको स्पीड अप करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक प्रोसेस के लिए एंजाइम चाहिए। ओके, तो इसको ऐसे याद रखना है, ये सब साइटोप्लाज्म है। अभी बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ ये बैक्टीरिया में अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसके पीछे लगा देते हैं। सो मेनी वेराइटीज आर फाउंड, सो मेनी वेराइटीज आर देयर। उसकी वेराइटीज बहुत सारी। तो अपने को जब टाइफॉइड होता है तो साल्मोनेला टाइफी, हमारे जो इंटेस्टाइन में इस्चेरिशिया कोलाई, बहुत डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया होते हैं, राइट। अभी ये तो सब ऊपर चल रहा है, ये सब ऊपर से वी आर स्टडिंग एक्चुअली सुपरफिशियल स्टडी, वी कैन से सुपरफिशियल स्टडी, राइट। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर में गए, तो पहले 3 लेयर में गए, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एसोसिएशन में ले लो, रिबोसोम्स ले लो, गैस वैक्यूल ले लो और क्रोमेटोफोर ले लो, मतलब अंदर वाला एक प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मॉनिटर करने में ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि भाई सर ने क्या पढ़ाया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या था। तो यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक प्लस मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। उस इसका तो एक डिटेल में लेसन आने वाला है, अभी याद रखो, समझाया उतना ही, हा? और उसके बाद रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिल्ली का रोल क्या है, मेसोसोम का रोल क्या है, रेप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सब समझा। इसके अंदर एक फंडामेंटल चीज आई ना, रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है पेरेंट्स से। ऐसा नहीं है कि
हर बार रिप्रोडक्शन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज ही होना चाहिए। ओके, अभी इसकी एक थोड़ी सी फिगर देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। ओके, लेट वी सी द फिगर ऑफ वन बैक्टीरियम। ये एक टिपिकल बैक्टीरियम, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक, इट इज फ्लैजेलम। अपने को पता है, यहाँ पर ड्राइंग की है, पिल्लाई है, और बहुत सारे उससे भी ज्यादा फिम्ब्राई है। इसका काम क्या, मोटिलिटी वाला। पिल्लाई का कॉन्जुगेशन, उसमें से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। फिम्ब्राई का काम स्टिक, किसी के साथ ये बैक्टीरिया को स्टिक करके रखता है। આપણે જેને ચોંટી જવું કહીએ એ પછી હોસ્ટ ટિશ્યુ હોય કે પછી રોક હોય. Now if we enlarge, we can see in this figure जेनेटिक मटेरियल जहां पर पड़ा है वो एरिया, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अंदर से बाहर आए, फ्रॉम इनर टू आउटर साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंड दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। व्हेन इट इज टफ, व्हेन इट इज वेरी वेरी थिक, टफ रहेगा, थिक रहेगा, देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर वो लूज रहेगा देन इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन इज अदरवाइज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू। We are going to study one full lecture about this cell membrane or plasma membrane. It is almost same in case of the prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell. It is selectively permeable membrane. उसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से किसी को अंदर जाना है तो ये उसको अंदर जाने से रोक भी सकता है और अलाउ भी कर सकता है। If the any molecule or particle which is beneficial for this bacterium, this cell membrane will allow to cross it. And if it is not beneficial, then this cell membrane will tell, okay भाई आपका कोई काम नहीं है, आप बाहर रहो। तो वो सिलेक्शन करता है। It is also acting as, आपको पता होना चाहिए ना कि एक होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो जो भी इम्परमिएबल है किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। जो कोई भी मेम्ब्रेन परमिएबल होता है तो वो कोई भी आयन को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने की अनुमति देता है। सिलेक्टिव होता है तो वो सिलेक्शन करता है। सेमी होता है, इट ऑल्सो अलाउस वाटर टू क्रॉस। ये जो चारों के चारों डिफरेंट टाइप ऑफ द लेयर है, उसका एक टॉपिक अलग से आने वाला है। ये हमारा लेसन नंबर 11 है, तो वो जब आएगा तब ये चारों के चारों की मैं डेफिनेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। अभी तो हमको इतना पता चल गया कि भाई ये सिलेक्शन करता है, ये वाटर को भी अंदर जाने की अनुमति देता है, और जो भी हार्मफुल है उसको अंदर नहीं मोकलता, उसको अंदर नहीं जाने देता, राइट। तो ये सब हो गया, ये साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर राइबोसोम है, हमने देखा था कि उसके अंदर मेसोसोम भी रहेगा, उसके अंदर क्रोमेटोफोर भी रहेगा अगर वो साइनोबैक्टीरिया होगा तो। लेट वी मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ प्रोकैरियोट। ये हमने जो भी पढ़ाई की वही है, ये कॉन्जुगेशन है। पिल्लाई का एक ऐसा ट्यूबुलर ब्रिज बन गया, जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर हो गया, दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो गए। दिस इज ए काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन से। अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फुल फ्लैजेलम, बेजल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है। अपने को ये सिर्फ 3 नाम याद रखना है, इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है कि ये बेजल बॉडी में ये हर एक का नाम क्या है। ये सब जब आप माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करोगे और एमएससी में जाओगे तब ये सब आएगा। अपने को एमएससी में नहीं जाना है, अपने को एमबीबीएस में जाना है ना। तो अपने को 3 नाम यहाँ पर याद रखना है, एक बेजल बॉडी, एक हुक और एक फिलामेंट। हमारा काम हो गया। In this lesson we will study about the internal structure of this filament.
मतलब फ्लैजेलम का इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, इसके अंदर क्या होता है ये आएगा। और जो सीलिया है उसका भी है। सीलिया आपको पता है, पैरामीशियम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसके पास होता है सीलिया। तो सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर स्ट्रक्चर दैट गिव मूवमेंट एंड ड्यू टू विच लोकोमोशन अकर्स। अभी ये नहीं आया, बच्चे सोच रहे हैं ये साहब लोकोमोशन और मूवमेंट क्या करता है, इसको मूवमेंट, इसको मूवमेंट कहते हैं, इसको मूवमेंट कहते हैं। अगर मैं यहां से यहां तक आऊँ उसको लोकोमोशन कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट लोकोमोशन अकर्स। जब जब मैं अपना प्लेस चेंज करूंगा देन इट इज कॉल्ड लोकोमोशन, एंड फॉर दैट आई हैव टू मूव माय लेग, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। सॉरी, ओके, लेट मी मूव अहेड। प्रोकैरियोटिक सेल अपने को पता है, उसका एग्जाम्पल सिर्फ एक बार देख लेना है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रीवियसली આને અલગથી સેપરેટ થી બધા નામ આપતા ઇન ધ યર 1931 आई वुड से, बट माइकोप्लाज्मा इज ए होल ग्रुप लेटर ऑन, और ये इसमें आने वाला एक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, बाकी जो सब फीचर्स है वो सब प्रोकैरियोटिक वाला है। तो इसका सिर्फ नाम याद रखना है। हमने अभी अभी देखा था कि बेसिलस तो रोड लाइक, कोक्कस फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलियम स्पाइरल शेप, ये याद रहना चाहिए। लेक्चर में आपके पास बॉल पेन तो है, वहां पर लिखा 1 2 3 बार अपनी बॉल पेन चलनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे रिवीजन भी होगा, कई कई ऐसे जब पॉइंट आएंगे तो। I have put in front of you some of the extra figure which are not given in your book. I will be putting such kind of the figures to clear each and every topic in your mind. તો એ અભી જે આપણે એક કહેવત છે ને કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, એમ જવાનું છે આ એક લેક્ચરમાં. તમે હવે જ્યારે વાંચશો, when you will go through this topic, you will come to know that so many minute things are given in this one topic. So we are to read it for so many time, then we are to write it, okay. So some of the student can mug within just 20 to 30 minutes. Some of the students may take more than 30 minutes. तो उसको देनी है, जब तक ये न हो तब तक उसके पीछे लगे रहो, वरना अचीवमेंट होने वाला नहीं है। ये मैं आपको लेक्चर में बहुत सारी बार कह चुका हूँ अभी तक। अभी ये 8.4.2 पढ़ना नहीं है, मतलब रिबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज नहीं देखनी है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि रिबोसोम्स में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मिनिमम 20 मिनट, ओके।